کل رات جب اس کے والد کو گرفتار کیا گیا یہ موصوف اس وقت آئس پی رہے تھے اور اتنا حادثات ہونے کے باوجود انلیگل ویپنز بے انتہا ایسے ملک کے جن کا ویپن پاکستان میں ہونا نہیں چاہیے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار فرقان شاہ۔ آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے اندر ایک بہت ہائی پروفائل کیس جو ابھی چل رہا ہے، جس پہ سب کی نظر ہے کہ اس میں روزانہ کی بنیاد پر جو اہم پیش رفت کیا ہو رہی ہے اور کس طریقے سے اس بچے کو قتل کیا گیا ہے، اور ارمغان جو ہے وہ بھی اریسٹ ہے، اور اس کے بعد جو اس کے والد نے جو وہاں پہ عدالت میں کیا شور مچایا، عدالت کے باہر آ کے میڈیا کے ساتھ کیا گفتگو کی اور اریسٹ بھی ہو چکی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ سر ابھی اس جو کیس میں ہے اہم پیش رفت کیا ہوئی ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، ارمغان جو قتل کیس ابھی تک چل رہا ہے کراچی کے اندر، اس میں کیا نئی پیش رفت ہوئی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ ذرا ارمغان کا ذرا بتائیے گا۔ ارمغان کا اس وقت جو فائنینشیل سٹیٹس ہے نا، یہ ٹیمپریری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ابھی کوئی ریسنٹلی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، 2012 میں اس کے والد روزگار کی تلاش میں، یہ جملہ بڑے غور طلب ہے، کامران قریشی روزگار کی تلاش میں امریکہ گئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ ویل سیٹل تھے، وہ وہاں پہ بزنس نہیں کرنے گئے، روزگار کی تلاش میں گئے۔ پھر کچھ عرصہ رہے وہاں پہ، پھر انہوں نے اپنے بیٹے ارمغان کو بلایا، انہوں نے وہاں پہ کچھ اکاؤنٹس کھولے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے ارمغان واپس آ گیا، والد اس کے وہیں پہ سٹے کر لیا۔ اس نے پھر اپنا کال سینٹر ٹائپ، یہ نہیں ہوتا جو ایک سسٹم بنایا، وہاں سے اس نے اربوں روپیہ کمایا ارمغان نے، 2.5-3 کروڑ کی گاڑی رکھی اور ویل سیٹل ہو گیا۔ اور اس نے وہاں پہ پھر جب پیسہ آ جاتا ہے نا، پیسے کی فراوانی ہو جائے، تو یا انسان دین کی طرف چلا جاتا ہے تو یا برے رستے پہ چلا جاتا ہے۔ یہ نوجوان تھا، اس کو تھوڑا سا دین سے اس نے دوری اختیار کی اور منشیات کی طرف آ گیا، اور منشیات کا استعمال اور آئس بیچنا، اور ایک اور وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو باہر سے آتی، جو پتے ہوتے ہیں جو آج کل بڑی پاکستان میں، ویٹ، اس نے وہ بھی شروع کر دی، اور باقی منشیات۔ پھر اس نے منشیات ایک ایسی چیز ہے کہ جو پہلے پیتا ہے نا، بعد میں وہ اس کا ڈیلر بن جاتا ہے، کیونکہ جو اس کی ایک کوانٹٹی جون سی ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہے۔ ارمغان کے منشیات کے بزنس میں انوالو ہونے کی وجہ تھی کہ اسے اس میں بہت زیادہ پیسہ نظر آیا، اور یہ فائنینشلی بہت ویل سیٹل تھا۔ اس نے وہ اس میں انویسٹمنٹ زیادہ کر دی، پیسہ اس کے پاس تھا، زیادہ خریدی، زیادہ بیچی۔ دیکھیں نا، ایک بندہ 2 لاکھ روپے کی چیز بیچتا ہے، ایک 2 کروڑ کی بیچتا ہے، اس کا پروفٹ 2 کروڑ کے حساب سے آنا ہے نا۔ یہ پھر مزید ڈیولپ ہو گیا۔ 2022 میں اس کا والد بھی واپس آ گیا۔ اس کا والد جو ہے وہ بھی ایک ہسٹری شیٹر ہے، کرمنل ہے۔ اس کے بعد جتنا جدید اسلحہ ہے وہ سارا اس کے والد نے لا کے دیا۔ یہ تو اللہ کی پکڑ میں ہے۔ جو مصطفیٰ عامر ہے، اس کا ایسا بروٹل مرڈر ہوا ہے، آپ بلیو کریں کہ اس نے اس کو اپنے گھر میں بلایا، اس کو لوہے کے راڈ سے تشدد کر کے جب وہ بے ہوش ہو گیا، اس کے ہاتھ پیر باندھے، اسی کی گاڑی کی ڈگی میں پھینک کر اس کو بلوچستان ہب کے علاقے میں لے گیا۔ ارمغان نے کیا، ارمغان نے کیا، ساتھ اس کا ایک دوست تھا، والد بھی ملوث۔ ہاں جی، اس نے اپنے والد کو، یہ پری پلانڈ مرڈر ہے، اس نے اپنے والد کو انوالو کیا، اس کے والد کی انوالومنٹ تھی۔ اب آ کے میں نے پچھلے دن ایک پروگرام کیا تھا جس میں میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کا باپ ملوث ہے، اس کو اریسٹ کیا جائے۔ پھر اب آ کے کل میں اس پہ وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور گورنر سندھ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری آواز پہ اس کے والد کو بھی گرفتار کر لیا، اور کل رات جب اس کے والد کو گرفتار کیا گیا، پولیس نے ABC ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ، انہوں نے ریڈ کر کے جب اس کو گرفتار کیا ہے، تو آپ یقین مانیں گے یہ موصوف اس وقت آئس پی رہے تھے، ارمغان کا والد۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور پولیس نے جب ریڈ کیا تو وہ جو جس انسٹرومنٹ سے آئس یوز کرتے ہیں، وہ جو حکا سا ہوتا ہے شیشے کا، وہ بھی موقع پہ برآمد ہو گیا، اور ½ کلو کے قریب ان سے آئس برآمد ہوئی ہے۔ اور اتنا حادثات ہونے کے باوجود انلیگل ویپنز بے انتہا ایسے ملک کے جن کا ویپن پاکستان میں ہونا نہیں چاہیے۔ اب یہ اتنا اعصابی طور پہ پکا ہے ارمغان کہ اس کا اگر دوست شریک جرم نہ ہوتا
तो जिंदगी में ये कत्ल पुलिस इससे मनवा नहीं सकती थी। ये माना है शुरू में कोई? बिल्कुल नहीं माना। जो जो इसका दोस्त बातें माना है, सिर्फ ये वही बातें माना है, उसके अलावा ये एक लफ्ज नहीं माना, एक लफ्ज। मैं इसलिए इदारों से, अपनी रियासत के इदारों से, कराची की गवर्नमेंट से, कराची के एवीसी डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको देसी तरीके से ट्रीट करें, इसको, इसके वालिद को या अरमगान को? दोनों को। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि अरमगान ने जब ये कत्ल हुआ है इसका, मुस्तफ़ा का, ये सारा उसको छुपाया गया, तो उसकी वालदा ने जो है ना अरमगान के लिए एक वकील किया था। अरमगान ने फिर उस पर भी कह दिया कि मुझे कोई वकील की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद जब इसके वालिद ने भी ये वकील किया है, और इसका वालिद जब भी ये तारीख पे आता था तो इसकी एक्टिविटी एक ना बड़ी वो देखी जाती थी, शोर मचाता था, अदालत के अंदर भी, अदालत के बाहर भी, बाहर जो मीडिया खड़ा होता था वहाँ पे आके ऐसी एक्टिविटी और ऐसी हरकतें और ऐसी चीज़ें बोल रहा था। क्या ये तब भी इसके नशे में ये सारी चीज़ें कर रहा ये नशे में करता था, और जानबूझ के ना ये ताकि इदारों का ध्यान बदलाने के लिए। लेकिन हमारे पूरे पाकिस्तान की जो पुलिस है ना, जब ये कंप्यूटर नहीं भी आया था ना, उनके पास तब भी एक डिवाइस है, वो इतनी की लंबी होती है, उससे बड़े बड़ों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। इसका भी रात को वो डिवाइस यूज़ हुई है, तो इसका भी सॉफ्टवेयर जो सा ना मुकम्मल अपडेट हो गया। वो शायद इतनी होती है या इतनी होती है, ये साइज़ है उस डिवाइस का। वो उसको कहते हैं, पता नहीं पुलिस की लैंग्वेज में पांजा के कुछ तरह का वर्ड यूज़ करते हैं। इसको सुना है रात को डबल शिफ्ट हुई है, तो उसके बाद इसके वालिद का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और इसके वालिद ने उसी वक्त बयान दिया कि मेरा बेटा मुलजम है, मैं क्योंकि उसका बाप हूं तो मैं उसे डिफेंड करने के लिए ये सारी हरकतें कर रहा था, नहीं तो अदरवाइज ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये बाप बेटे को कोई मना लेते। ये तो पुलिस की डिवाइसें हैं जिन्होंने ये जदीद डिवाइस, ये हैं डिवाइसें पुराने दौर की, लेकिन ये इनका रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा शाह जी, मुझे ये भी बताइएगा कि अब इसमें जो है ना माँ बाप, ये कैसा माँ बाप है कि अपने बच्चे का पहले उन्होंने जुर्म छुपाया है, फिर माँ ने वकील करवाया, फिर बाप ने करवाया, और अब वही माँ बाप जो है वो खुद कह रहा है कि हमारा बच्चा है जो उसने ये काम किया है। तो माँ बाप तो फिर पहले छुपाया है, फिर उसको सामने लेके आ गए, तो अब भी इनके जो वालिद हैं या वालदा है उनके दरमियान आपस में तो लड़ाई झगड़े पड़ गए होंगे। सेपरेशन नहीं, पहले ही सेपरेशन हुई है। अच्छा। अलग-अलग रहते हैं। अरमगान अपने वालिद के साथ रहता था, वालदा बेचारी अलग रहती थी, डिवोर्स हो गई हुई है इनकी, या सेपरेशन हो गई हुई है। अरमगान को जो उसने अपनी वालदा के वकील को रिजेक्ट किया, फिर वालिद के वकील को रिजेक्ट किया, वो जिस के लिए काम कर रहा है, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको उन पे कॉन्फिडेंस था कि वो बैरूनी मुदाखलत करके मुझे क्लियर करवा लेंगे। और एक दफ़ा मुदाखलत हुई भी, जब वो इतने बड़े हीनियस मर्डर में पकड़ा गया तो सेम डे उसको जुडिशियल कर दिया गया, उसका रिमांड नहीं दिया गया। नहीं तो एटीसी कोर्ट में आपके इल्म में होगा कि 90 डेज़ का रिमांड जौन सा है ना वो होता है, उसका 1 घंटे का रिमांड भी नहीं जज साहब ने दिया था। छोटे जो पुलिस के अफसरान है ना, वो तो अरमगान के अगेंस्ट FIR तक नहीं कर रहे थे। इसकी वालदा बेचारी की वो जो वजीहा आमिर है ना, वो मेरी बहनों की तरह, उनकी एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे। ये तो अल्लाह ताला ने करम किया है कि उसकी ये टोटल जो मर्डर ट्रेस किया है ना, मैं इदारों को इसका क्रेडिट नहीं दूंगा, इसका क्रेडिट टोटल उसकी वालदा वजीहा आमिर को जाता है। उस बेचारी ने अपने, एक तो उसने पुलिस वालों के रवैये को फेस किया, दूसरा उसने लोगों के इन बातों को फेस किया कि उसका बेटा मनशियात का कारोबार करता था। ये बड़ी बड़ी बेचारी ने नेगेटिव जो है ना ट्रोलिंग बर्दाश्त की। उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने इस चीज़ पे बजिद रही, और 1 माह बाद इसको पकड़ाने में कामयाब हुई है। इदारों ने सिर्फ इसको बाद में मनाया, ठीक है। इसका दोस्त जो शराज पकड़ा गया ना, वो पहले बोला, अगर वो ना मानता तो इदारे इसको फिर भी पकड़ने के लिए अरमगान को तैयार नहीं थे। जब शराज ने सारा क्राइम बता दिया, इसमें अदाकार साजिद हसन का बेटा भी, लेकिन वो कत्ल में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन नारकोटिक्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये कराची की गवर्नमेंट के लिए लम्हा फिक्रिया है कि उनके अब हर चीज़ वाज़ेह हो गई है, मनशियात का तरीक़ाकार तक गवर्नमेंट को पता लग गया है। किसी भी इदारे के पार्सल के ज़रिए ये लोग मंगवाते थे, अब ये सारा तरीक़ाकार वहाँ की गवर्नमेंट को पता लग गया।
सॉरी मेरे पंजाब गवर्नमेंट को पता लग गया, पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पता लग गया। अब इनको इसके ऊपर भी पार्सल सारों में कोई स्कैनिंग करनी चाहिए, कुछ चेकिंग करनी चाहिए। ओपन वीट, आपको भी याद है कि जब नए नए हीरोइन आई है तो लोग शॉपरों में लेके जहाज में दूसरे मुल्कों में बेचने चले जाते थे। यही चीज़ अब इतनी मनशियात आ गई है, वीट आ गई है और बड़े बड़े नशे आ गए जिनका अभी तक इदारों के इल्म में भी नहीं है, तो नौजवान उसमें मुलव्वस हो रहे हैं। अब इदारों को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और ख़ास तौर पे हमारा एक इदारा है ANF, उसको भी एक्टिव होना पड़ेगा। हेरोइन चर्च से बाहर निकल के अब वीट और ये दूसरे नशों की पे भी उनको अपना जो फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नौजवान सारी नस्ल तबाह हो जाएगी। आइस और ये वीट ये इस तरह के नशे हैं कि इसको जो भी नौजवान पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। क्यों बूढ़ा नहीं होता? बूढ़ा नहीं होता, कत्ल कर देता। नहीं, वो जवानी में मर जाता है। ये इतने डेंजरस नशे हैं। अच्छा, हाँ जी। हमने समझा कि वो बूढ़ा नहीं होता, वो उधर ही कत्ल हो नहीं जाता है। नहीं 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 कत्ल नहीं, कर देता है अगले वो को। जवानी में मर जाता है, दिमाग नहीं अपनी जगह पे। दिमाग ही नहीं रहता, खुशक हो जाता है, कोई ना कोई ऐसा उससे अटेम्प्ट होती है या नशे की ओवरडोज की वजह से वो जवानी में ही मर जाता है। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि इसका जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुलजिम है वो अरमगान ही है? अरमगान है, उसका बाप है। मैं पहले दिन से उसके बाप को, कामरान को, कुरैशी को मुलजम कह रहा हूँ, मेरी कोई नहीं मान रहा था। आखिर पे उन्होंने जब शवाहिद मिले हैं तो तब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। शिराज है, ठीक है, अरमगान है और उसका वालिद है, ठीक है। ये तीनों इसके मुलजम हैं और ये तीनों इन्वॉल्व हैं। अब तफ्तीश रुख इख्तियार कर लिया। अब उसका वालिद जो मुंह पे कपड़े ले लेके यूं यूं करके कॉमेडी करता था ना चैनल्स के साथ, अब उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी है ABC डिपार्टमेंट ने और उसके मुंह पे चादर डाल के उसको कोर्ट में पेश किया। अच्छा शाह जी, इस पे ये भी हो सकता है कि जो इसका वालिद है अरमगान का, ये अभी जो है तफ्तीश हो रही है, इसको अरेस्ट किया गया, जो चीज़ें इससे बरामद हुई हैं, असला या कुछ भी हुआ है, अगर ये मशवरे में आ गया, जैसे उसका बेटा अरमगान बता रहा है, उसकी वालदा ने कहा वकील, उसने कहा मैंने नहीं लेना वकील, कोई ज़रूरत नहीं वकील की, बाप ने कहा नहीं लिया। अब मशवरे में जो अगर इसको कर दिया जाए, मशवरे में उसका क्या कर सकते हैं या इदारे उसको क्या सज़ा दे सकते हैं? क्योंकि अरमगान खुद कह रहा है कि मैंने कत्ल किया है, तो अब मैं तो फंसा हूँ, तो अब मैं बाप का नाम तो वो थोड़ी लेगा कि वो कह देगा जी मेरे बाप ने साथ मिल के ये कत्ल किया है। बाप मशवरे में आएगा या कत्ल में आएगा, 302 में आएगा या 109 में आएगा? 109 में भी आएगा, ठीक है, और शवाहिद गायब करने में बाप का रोल है, वो 109 से बड़ी दफ़ा है। ठीक है, ठीक है, बाप ने शवाहिद भी गायब किए हैं, बाप ने ये इस कत्ल में बाज़ाब्ता डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है, उसकी 109 से पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एक हाई प्रोफाइल केस है और इसमें सिर्फ इस मर्डर की इंटेरोगेशन नहीं होनी चाहिए। जी तो नाज़रीन, ये जो कराची में वाक़या पेश है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, और उसका जो मरकज़ी मुलजिम है वो अरमगान है और उसके वालिद को रात को जो है अरेस्ट कर लिया गया। आगे उसमें क्या अहम पेशरफ्त होगी वो भी हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और फिर वही बात आ गई कि नशा, आइस और ड्रग्स, ये सारी चीज़ें एक्टिव जो इंसान को करती हैं, लेकिन उससे वो जुर्म जो करवा देती हैं वो इनको नहीं पता चलता। जब जुर्म कर देते हैं फिर उसके बाद छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है इदारे भी जो है मुतहरिक हैं, हर चीज़ यहाँ पे जो है ना इस चीज़ को देख रही है। ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल जो केस इस टाइम जो बन चुका है कराची के अंदर, वो सारा आपके सामने है। आपने भी प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।